آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خواں حاضر خدمت ہے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد یوں بیٹھ جاتے تھے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے یا 14ویں کے چاند کے گرد جب ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، وہ والا منظر ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام واعظ اور تلقین فرماتے تھے، صحابہ کرام سنتے رہتے تھے، آپ کے مبارک ارشادات کو قلب میں اتارتے تھے اور ارواح کو تر و تازہ کرتے تھے۔ کیا منظر ہوگا! اسی دوران ناظرین محترم ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ننھے قدموں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچتا تھا۔ اس بچے کا نام تھا عمیر بن سعد۔ عمر کم تھی مگر عشق رسول اللہ سے پکا تھا، اس لیے روزانہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دل نشین گفتگو سماعت کرنے کے لیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے مسجد نبوی پہنچ جاتا تھا۔ کبھی وہ آتا تھا اپنے چچا کے ساتھ، چچا جن کا نام تھا جلاس بن سوید، ان کے ساتھ آتا تھا تو کبھی اکیلا بھی آ جاتا تھا۔ باپ اس بچے کا اس کی ولادت کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسا تھا۔ پھر چچا بھتیجے سے بڑی محبت کرتا تھا تو اس نے اس بھتیجے کی محبت میں ہی اس کی ماں سے نکاح کر لیا تاکہ بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار مل سکے۔ چچا بھتیجے میں محبت بہت زیادہ تھی، بڑے ناز و نام سے وہ بچے کو پال رہا تھا۔ ایک دن اس بچے کا چچا کسی وجہ سے اسے مسجد نبوی لے کر نہیں گیا تو بچہ خود ہی چلا آیا اور رسول اللہ کی تقریر سننے بیٹھ گیا۔ آقا کریم نے اس دن آخرت اور قیامت کی منظر کشی فرمائی تھی۔ جب وہ بچہ واپس گھر آیا تو اپنے چچا سے کہا، چچا آج میں نے رسول اللہ کو قیامت کا ذکر فرماتے دیکھا اور رسول اللہ نے ایسا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کا اب نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ بات اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج وہاں نہیں گیا تھا، غیر حاضر تھا، اور بھتیجا چاہ رہا تھا کہ میں چچا کو حضور کی بارگاہ سے سنی ہوئی باتیں بتاؤں تاکہ جس نے نہیں سنی وہ محروم نہ رہے، اس کی محرومی دور ہو جائے۔ لیکن اب یہ جو اس کا چچا تھا جلاس بن سوید، یہ ازلی بدبخت تھا۔ بظاہر تو مسلمان بنا پھرتا تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا۔ اس نے بھتیجے کی یہ بات سن کر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس بدبخت نے جو الفاظ کہے تھے وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال اس نے گستاخی کی اور اسے لگا کہ بچے کے سامنے کہہ رہا ہوں کیا فرق پڑ جائے گا۔ بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے وہ الفاظ سنے۔ کس کے بارے میں؟ آقا کریم کے بارے میں، جس کا وہ عاشق تھا۔ اب وہ حیران رہ گیا کہ میرا یہ چچا بول کیا رہا ہے، یہ تو مجھے انگلی پکڑ کے خود مسجد نبوی لے کر جاتا تھا اور آج اس نے یہ کیا بات کہہ دی۔ میں اسے کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا نکلا؟ یہ تو پکا منافق نکلا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور بے شک جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ مومنوں کی تو جانوں سے قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ حضور کیا بات ہے! اب ناظرین کرام، پہلے تو وہ بچہ
जब असलियत जान गया अपने चचा की तो हैरान और परेशान हो गया। फिर वो जब इस शौक की कैफियत से बाहर आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चचा के गुस्ताखाना जुमलों पर तैश में आ गया। उसने कहा, ए मेरे बदबख्त चचा, अल्लाह की कसम मेरे दिल को सबसे अच्छा अगर कोई लगता था तो वो बंदा तू था। मैं तुझसे प्यार करता था क्योंकि तू मुझे उंगली पकड़कर रसूल अल्लाह की चौखट पर ले जाया करता था, लेकिन अब मेरी हालत ये है कि वल्लाह इस कायनात में मुझे जितना बुरा तू लगता है कोई और इतना बुरा नहीं लगता। मेरे चचा, अब मैं एक दोराहे पर खड़ा हूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो मेरे लिए ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूँ और जो तूने गुस्ताखी की है वो मैं रसूल अल्लाह को ना बताऊँ। दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जो तूने कहा है मैं जाकर वैसे ही रसूल अल्लाह को बता दूँ, फिर हुजूर जाने और तू जाने। सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप कुर्बान इस कमसिन सहाबी हज़रत उमैर बिन सौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत पर, दयानत पर। हज़रत उमैर बिन सौद के चचा जुल्लास बिन सवैद ने भतीजे की नन्ना सा मुन्ना सा ये बच्चा है, जब ये धमकी सुनी तो हंस पड़ा। कहने लगा कि तू तो ना समझ सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तेरी बात किसने माननी है, जा जो जी चाहता है कर दे। वो बच्चा उठा और रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। और वो बच्चा क्या कहता है नाज़रीन, ये अल्फाज ज़ाहिरी कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से समात करने के हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही प्यार करने वाला बना दे, ऐसा ही सच्चा और पक्का आशिक रसूल बना दे। मासूम बच्चे ने बारगाह नबवी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा चचा मुनाफिक है, उसने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है। रिश्ते में तो मेरा चचा है लेकिन उसने बाप से बढ़कर मेरी परवरिश की है, लेकिन आज मैं पहले अल्लाह के हुजूर और फिर आपके हुजूर उससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। याद रखिए, ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है, ये बच्चा छोटा है लेकिन इसका इश्क बड़ा है। हुजूर, मेरा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। रसूल अल्लाह ने बच्चे की बात सुनी, गौर से सुनी और शफकत से फरमाया, उमैर, तेरे चचा ने क्या कहा है जो तू उससे इतना बददिल हो गया है। बच्चे ने उसी लम्हे सारा माजरा सुना दिया। बच्चे ने वो गुस्ताखाना अल्फाज भी बताए जो उसके चचा ने रसूल अल्लाह के लिए कहे थे। रसूल अल्लाह को बच्चे की बात पर फौरन यकीन आ गया। हुजूर जानते हैं, एक निगाह में भांप लिया कि ये बच्चा सच्चा है, ये बच्चा सच्चा आशिक रसूल है। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। निगाहे नबूवत ने भांप लिया कि बच्चा सच्चा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया। सहाबा को बुलाया, बताया कि ये वाक़या पेश आया है, बताओ क्या करें। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये बच्चा छोटा है, कमअक्ल है, ना समझ है, ये तो अपनी बात अभी सही तरह समझा ही नहीं सकता, जबकि इसका चचा जुल्लास बिन सवैद बड़ी उम्र का आदमी है, आकिल है, बालिग है, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ता है, लिहाजा आप इस बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर दीजिए।
उधर जुल्लास बिन सवैद को सूरत हाल का पता चल गया तो उसने बच्चे की कफालत से सबसे पहले हाथ उठा लिया और कस्में खाना शुरू कर दी कि मैंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं। एक छोटे से बच्चे ने अपनी तरफ से बात घड़ ली है। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी उस कमसिन सहाबी ने जब ये देखा कि मेरे दावे को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो फिर मस्जिद नबवी में ये अनोखा नज़ारा देखने वालों ने देखा। उस बच्चे ने अपनी झोली फैलाई, आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे झूठा कर दे, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। बच्चे ने ये दुआ की तो अभी उसने दुआ मांग कर हाथ भी चेहरे पर नहीं फेरे थे कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और ये आयत नाजिल हुई। सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 74। तर्जुमा आपके सामने पेश करती हूँ। तर्जुमा है कि ये मुनाफिकीन अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने यकीनन कलमा कुफ्र कहा है और वो अपने इस्लाम को जाहिर करने के बाद काफिर हो गए और उन्होंने कई अज़ियत रसा बातों का इरादा भी कर लिया था जिसमें ये कामयाबी हासिल न कर सके और वो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में से और किसी चीज़ को नापसंद न कर सके सिवाय इसके क्योंकि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फजल से गनी कर दिया था। तो अगर ये अब भी तौबा कर लें तो इनके लिए बेहतर है और अगर ये मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब में मुब्तला फरमाएगा और इनके लिए ज़मीन में ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। छोटा सा बच्चा अपने हक़ में अल्लाह से दुआ करता है। अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई कि अल्लाह ताला ख़ुद उस बच्चे की गवाही के लिए आयात नाजिल फरमाते हैं। इन आयात के नज़ूल के बाद अल्लाह के हबीब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, मुबारक हो उमैर, तेरे कानों ने जो सुना था वो ठीक ही सुना था और तू वो है जिसकी गवाही और जिसकी तस्दीक मेरे रब ने खुद फरमाई है। सुभान अल्लाह। इस आयत के नुज़ूल के बाद उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा जुल्लास ने बावाज़े बुलंद कहा कि मैं अपने इस अमल पर तौबा करता हूँ। इसके बाद वो दिल से ईमान ले आया। आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा कबूल फरमाई। तौबा कबूल होने की खुशी में उसने भतीजे की कफ़ालत न करने की जो कसम खाई थी वो भी तोड़ दी और फिर हमेशा उसकी किफ़ालत करते रहे। इश्क़ रसूल की बदौलत हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बारगाह रिसालत में वो मकाम मिला कि वो सहाबा में फ़ज़ल और कमाल के लिहाज से मुमताज़ समझे जाते थे। तो नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क के इस ताल्लुक़ को मज़बूत रखिए क्योंकि ये वो ताल्लुक़ है जिसने भरी बज़्म में एक बच्चे को झूठा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। अमल की मेरी असास क्या
कि बात अब तक बनी हुई। अल्लाह हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए, आमीन। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।